Hello guys, today we are discussing what is function overloading and operator overloading and what is this pointer. In this video we will discuss what is function overloading and operator overloading. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel Attitude Academy. Let's start our topic. What is function overloading? What is function overloading? Function overloading, this is a very simple concept. When same function name but the different argument or parameter, that is known as function overloading. Similarly, operator overloading का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास दो ऑपरेटर, जब हम int को प्लस करते हैं या float को प्लस करते हैं, that is known as the operator overloading. यानी कि एक ऑपरेटर्स दूसरे ऑपरेटर्स से कैसे बिलोंग कर रहा है, मीन्स प्लस करना है आपको दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन. जैसे आपको इंट को प्लस करना है, तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज द डिक्लेरेशन इज दैट declare that the same name as the previously declared declaration in the same scope. Both are the declaration have the different argument and a different definition implementation. When you call an operator function or operator, the compiler determines the most appropriate definition to use. The comparing the argument type you have used to call the function or operator with the parameter type specified in the definitions. Function overloading, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, multiple definition for the same function name in the same scope. The definition of the function must differ from each other by the types and number of argument in the argument list. You cannot overload the function declaration that the differ only by the return type. क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? सेम फंक्शन नेम एक सिंगल प्रोग्राम में, जैसे आपने कहा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपके पास तीन फंक्शन एक ही प्रोग्राम में बने हैं, लेकिन उनका जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट लिस्ट है, वो डिफरेंट है. दैट इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. अनदर वर्ड या अनदर डेफिनेशंस में अगर बोले तो सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, दैट इज नॉन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग. जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिख रहा होगा एग्जांपल प्रिंट, लेकिन यहाँ पर एक डबल में दे रखा है पैरामीटर, एक कैरेक्टर्स में दे रखा है, तो बोथ आर द डिफरेंट, दैट इज नॉन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग. जब भी आप कॉल करोगे तो डिपेंड करेगा, ये फ्लोट की वैल्यू गई हुई है, ये यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू गई है, और जब आप डिफरेंट, इसी से पता लग जाता है कि ये क्या बना हुआ है, फंक्शन ओवरलोडिंग. राइट. अब इसके बाद आती है बारी दिस पॉइंटर. Every object has a special pointer, this which point the object itself. यानी कि ऑब्जेक्ट अपने आप जिस तरह से, when the object called itself, that is called the this pointer. This pointer accessible to all members of the class but not to any static member of class. Can be used to find the address of object in which the function is a member. तो दिस पॉइंटर क्या करता है कि करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट को कॉल करता है और वो सेल्फ से कॉल करता है. दिस इज नॉन एज द दिस पॉइंटर. तो दिस पॉइंटर का ही एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर कि दिस पॉइंटर को किस तरह से यहाँ पर यूज किया गया है. यानी कि यहाँ पर एरो इंडिकेट करा हुआ है. दिस इज आल्सो कीवर्ड ऑफ C++. राइट. तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो इस वीडियो में, और इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ. Now the topic is operator overloading. You can redefine or overload most of the built-in operators available in C++. Thus, a programmer can use operator with the use defined type as well. Overloaded operator are the function with the special name, the keyword operators. The following of the symbols are the operator being defined like any other function, and the overloaded operators has a return type and parameter list. यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स नाम की एक क्लास बनी है, इसमें ऑपरेटर एक कीवर्ड है, प्लस यहाँ पर जो भी आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसका है नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कॉन्स्ट बॉक्स. यानी कि यहाँ पर जो भी उसका रेफर देना है, इस तरह से आप सिंटेक्स को बिलोंग कर सकते हो. और ये एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर बॉक्स नाम का बना रखा है, गेट वैल्यू दे रखी है, और इसके अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर रखा है.
वॉल्यूम निकालने के लिए सेट विड्थ कर रखी है, सेट हाइट कर रखी है, और यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड का जो मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि दो ऑपरेटर्स को कैसे कंबाइन करना है, किस तरह से उसकी लेंथ को कंबाइन करना है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हो मेरे साथ। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरह से इसकी कॉलिंग होगी। जैसे बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, 3 ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसकी लेंथ भेज रखी है, और जब लेंथ हमारे पास जाएगी तो वो लेंथ सीधा हमारे पास सीधा यहाँ पर चली जाती है। उसकी लेंथ आप देख सकते हो उसमें, और फिर इसी तरह से यहाँ पर उसकी विड्थ गई है, हाइट गई है, और जैसे मैंने इसको कॉल किया हुआ है यहाँ से बॉक्स डॉट गेट वैल्यू, और वो वैल्यू को दे देता है यहाँ पर। फिर इसी तरह से बॉक्स 2 डॉट गेट वैल्यू, फिर वो वैल्यू को देगा, और इसी तरह से दोनों बॉक्स का एडिशन होकर थर्ड पे आ जाता है, और थर्ड वॉल्यूम को इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। तो देख सकते हो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। अब मैं इसका आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाने जा रहा हूँ विद द लाइव इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दिस पॉइंटर। बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और सिंपल तरीके से देखते रहें। मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें लाइव। और आप देख सकते हो इधर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सिंपल कंसेप्ट। और यहाँ पर आप सबसे पहले वॉइड मेन डिक्लेयर कर दें, और सबसे पहले आप यहाँ पर गेट ch, और फिर इधर आप देख सकते हो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हो वॉइड या इंट एरिया इंट l इंट ब्रेथ के लिए b ले लो आप, और रिटर्न कर देंगे इसे l इंटू b, राइट। एक मैंने ये बना दिया, और एक सिंपल सा मैंने एक फ्लोट एरिया, और आप इधर देख सकते हो इधर मैंने लिख दिया है फ्लोट r रेडियस के लिए, और यहाँ पर मैं सिंपल रिटर्न कर देता हूँ पाई r स्क्वायर, राइट। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कॉल करा। अब मैं यहाँ से सीधा सी आउट एक स्टेटमेंट जहाँ पर मैंने लिखा एरिया, और यहाँ पर भेज दिया मैंने 10.20, सिंपल एक रेडियस, और एक यहाँ पर मैंने भेज दिया है एरिया, और यहाँ पर भी मैंने 10.20 भेजा है। और इस तरह से आप देख सकते हो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को, कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। यस, नो प्रॉब्लम्स। अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट। रिटर्न टाइप आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फंक्शन का नाम एरिया है और यहाँ पर भी एरिया लिखा हुआ है, तो सेम है। यहाँ से आपकी कॉलिंग भी आपको समझ में आ गई होगी, वो मैच करेगा उसके आर्गुमेंट लिस्ट से, तभी वो फंक्शन कॉल होगा। तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि किस एरिया के पास उसे जाना है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स। देख सकते हो इसमें हमारे पास दोनों आउटपुट बहुत अच्छी तरह से आ चुके हैं, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन करके। तो यहाँ पर हमने एंड एल लगा दिया है, वो नेक्स्ट लाइन को करेगा। और फिर इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल आउटपुट जो हमने एरिया ऑफ सर्कल कॉल किया सबसे पहले, और फिर उसके बाद एरिया निकाला हमने लेंथ इनटू ब्रेथ करके, राइट। आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है वो देखते जाएं इस वीडियो में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आप यहाँ देख सकते हो मेरे साथ इस वीडियो में सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने बना रखा है क्लास का नाम दे रखा है चेक काउंट, और फिर इसको मैंने बंद कर रखा है। फिर यहाँ पर मैंने पब्लिकली दो वेरिएबल ले रखे, इंट प्लस और इंट माइनस, काउंट प्लस एंड काउंट माइनस, ये दो वेरिएबल है। चेक काउंट एक कंस्ट्रक्टर ले रखा है जिसमें इनिशियल वैल्यू कर रखी है प्लस की 0 और माइनस की 2। तो यहाँ पर मैंने प्लस प्लस लगा रखा है ऑपरेटर इज अ कीवर्ड प्लस प्लस। और फिर यहाँ पर जो मेरे पास एक वेरिएबल था काउंट प्लस, उसके अंदर मैंने
प्री इंक्रीमेंट लगा रखा है और इधर प्री डिक्रीमेंट लगा रखा है। दोनों ऑपरेटर को किस तरह से मैंने यूज कर रखा है सिंपल तरीके से आप देख सकते हो इस वीडियो में। मेन से जैसे मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, चेक काउंट नाम की क्लास थी, उसके दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं और उस ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे कॉल करा एक्स डॉट काउंट प्लस, तो वो सीधा यहाँ पर जाता है और फिर उसके बाद माइनस माइनस काउंट, तो ये वाई से गया हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम इसके अंदर एक और प्लस करते हैं और या माइनस करते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर आप आंसर देख सकते हो कि किस तरह से मैंने एक्स डॉट काउंट प्लस कर रखा है और वाई डॉट माइनस कैसे कर रखा है आफ्टर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और ये हमारे पास ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। सिंपल तरीके से देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको करा है और एक एक कंसेप्ट को मैंने इसको ट्रेसिंग करके बताया है। देखते रहे आप कि ऑपरेटर प्लस प्लस एंड ऑपरेटर माइनस माइनस किस तरह से इसमें चल रहा है और इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मेन का पार्ट है और ये ऊपर मेरी क्लास बनी हुई है सिंपल, और इसको अब हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हो प्लस की वैल्यू 0 थी और माइनस की वैल्यू 2 थी और किस तरह से ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो इनिशियल वैल्यू 0 0 थी एंड आफ्टर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट y की वैल्यू है 1 एंड x की वैल्यू भी 1 हो गई है। तो इस तरह से आप ये वीडियो में देख रहे हो कि किस तरह से मैंने इसको करा है। आप सिंपल चलते हैं अपना दिस पॉइंटर की तरफ। दिस पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है और वो हम बनाते हैं इसके अंदर सिंपल तरीके से, और इसको कॉल करेंगे फिर हम दिस पॉइंटर को बनाते हैं और दिस पॉइंटर का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाता है। विद इन अ मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ व्हाट इज द दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है, तो आप बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और देखते रहें व्हाट इज द दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर किस तरह से यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इसको सिंपल तरीके से देखते रहें, बने रहें मेरे पास इस वीडियो में और मेरे साथ करते रहें C++ का। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास, और यहाँ पर हम सिंपल एक क्लास बनाते हैं और क्लास में कुछ रिकॉर्ड डालते हैं सिंपल तरीके से और उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दिस पर पॉइंटर कॉल होगा। सेल्स पर्सन नाम की एक क्लास बना रखी है। क्लास को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कैर पॉइंटर नेम और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट टोटल, और टोटल के बाद मैंने इसको भी बंद कर दिया है। फिर पब्लिक में मैंने कुछ सेल्स पर्सन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है और इसके अंदर strcpy यानी कि ये कॉपी करने के काम आता है, और नेम कॉमा स्पेस दे दिया मैंने और इधर सेमीकोलन और फिर लिख दिया है टोटल इक्वल टू 0.0 सिंपल तरीके से, और ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक void input एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैंने सीधा लिख दिया है cout करके एंटर द सेल पर्सन नेम, एंटर द नेम या नेम प्लीज राइट, और फिर उस नेम को मैंने गेट्स करवा लिया है और गेट्स कराने के लिए मैंने सिंपल लिख दिया है यहाँ पर नेम और फिर इसको बंद कर दिया। एंटर द टोटल सेल cout और यहाँ पर लिखा है टोटल सेल्स इनपुट, और इधर भी आप देख सकते हो
सीन करवा लिया इसके को भी मैंने। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख लिया है, टोटल से इनपुट हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, वॉइड डिस्प्ले। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने CLR सबसे पहले क्लियर कर देते हैं स्क्रीन, एंड सेल्स सेल पर्सन S नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और S डॉट इनपुट S डॉट डिस्प्ले। और फिर उसके बाद यहाँ पर गेट ch, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के बेस पे आप देख सकते हो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर करा इसे, राइट। तो इसको चला के देखते हैं एक बार, और उससे पहले एक बार गेट्स के लिए एक और हेडर फाइल ले लेते हैं, stdio.h, ये आपको काम आएगी। तो यहाँ पर अभी एक एरर दिखा रहा है कि str, तो स्ट्रिंग के लिए भी एक ले लेते हैं, #include string.h। और सिंपल तरीके से मैंने ये प्रोग्राम आपको करके दिखाया है, दिस पॉइंटर कि दिस पॉइंटर का क्या रोल है। और यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते थे, डिस्प्ले जो मैंने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले में, यहाँ पर आपने देखा होगा कि टोटल दिस नेम, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनपुट करवाया था, और यहाँ पर मैंने टोटल ले लिया था। और सॉरी दिस concept is shift L and shift insert। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले में किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है दिस पॉइंटर cout, और आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस एरो की, और एरो की में लिख दोगे आप नेम, और फिर cout लिख दोगे दिस टोटल, राइट। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रोग्राम करा गया है। दिस पॉइंटर्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना हुआ है। सिंपल तरीके से पॉइंटर्स लेना है और नेम असाइन कर रखा है, टोटल निकाला हुआ है। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट। और अब इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पर नेम डाल दीजिए, जैसे मैंने डाला है साहिल, और आप देख सकते हो इधर मैंने 12,000 डाला, तो यहाँ पर साहिल 12,000 दिस पॉइंटर के थ्रू कॉल हो गया है सिंपल तरीके से। और ये आपको समझ में आ गया होगा। तीनों कंसेप्ट मैंने आपको बताए, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर का भी ये कंसेप्ट आपको समझ में होगा, कनेक्टली कॉलिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द दिस पॉइंटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।